Jai Hind students. So now the rest of we are going to continue the same chapter, that is probability, chapter 13. In my previous lecture I taught you about what do you mean by experiment, random experiment, mutually exclusive event, mutually exhaustive events, some notations, and the special cases, conditional probability. So conditional probability, what do you mean by conditional probability? Whenever a event occurred or non-occurred affect the occurrence of or non-occurrence of other event. So that is called conditional probability. जब हम कोई भी probability निकाल रहे हैं और हमें ये बता रखा है कि एक event already happened है, then you have to find out the probability of other event. That is called conditional probability. Now today we are going to see the properties of conditional probability. So properties of conditional probability, सबसे पहला, if A is equal to B and A and B are two events of the sample space S. अगर A equal to B है तो probability of A upon B क्या होगा? A upon B कैसे लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, A इक्वल टू B है तो कैन आई राइट लाइक दिस? क्या लिख सकता हूं मैं इसको कि A की जगह B लिख सकता हूं, तो B इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, B इंटरसेक्शन B B ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, that is equal to 1. अगर दोनों इवेंट if A is equal to B है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे इसकी तो वो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देता हूं B अपॉन A, देन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A in place of B we should write, can I write A? So probability of A इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन दिस इज इक्वल टू 1. क्लियर? इट नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A क्या होगा? सो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या मतलब होता है इसका? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड. सो B इंटरसेक्शन A, अब A जो है वो B का सबसेट है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा A. नेचुरल सी बात है, A के सारे एलिमेंट किस में होंगे? B में होंगे, तो B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड दैट इज इक्वल टू 1 अगेन इफ A इज ए सबसेट ऑफ B. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ B, जो B इवेंट है वो हैपन ना हो and A is already occurred, then what is the conditional probability of not happening of B? Conditional NaL, conditional probability of not happening of event B when A is already occurred. इसका मतलब हुआ हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग B का बाहर, नॉट B अपॉन A. सो द आंसर इज, क्या फॉर्मूला होता है इसका? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन. So if we want to find out the conditional probability of not happening of any of the event, then how to write it? Probability of
बी बार अपॉन ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए. So these are some of the property which we are going to use while we are going to solve the questions. Now the first exercise based on conditional probability. First question is E and F are events and probability of E is given 0.6, F is given this, intersection is given this. We have to find probability of E upon F. मतलब probability of event E when F is already occurred. So probability of E upon F क्या फॉर्मूला होता है, probability of E intersection F upon probability of F. E intersection F हमें दे रखा है 0.2, probability of F हमें क्या दे रखा है 0.3 and the answer is 2/3. This is your first part. इसी में second part है probability of F upon E. So probability of F upon E क्या होगा, probability of F intersection E upon probability of E is equal to probability of E intersection F या F intersection E है 0.2 और ये 0.6, that is equal to 2 upon 6, 1 upon 3. So like this we can find out the conditional probability of an event when the other event is already occurred. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 2. Compute probability of A when B is already occurred. So everything is given to you. You have to just apply the formula. Probability of A when B is already occurred. That is probability of A intersection B upon probability of B. So A intersection B is 0.32 upon 0.50. That is 32 upon 50. This is 25, 1, 6, 16 upon 25. Okay, now come to next. If probability of A is equal to this, B is equal to this, and probability of B upon A is this, so first of all we have to find A intersection B. So probability of B upon A is given to you and the formula for this is probability of B intersection A upon probability of A. Now इसका जो वैल्यू है that is 0.4. We have to find the value of B intersection A. Probability of A हमें दे रखा है 0.8. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे you will get the answer 0.32. So this is the probability, required probability. Okay, now second we have to find the probability of A upon B. That is probability of A intersection B upon probability of B. ठीक है, A intersection B हमने कितना निकाला है 0.32 and probability of B is given to us 0.50. So this is 32 upon 50 or 16 upon 25, 16 upon 25. The third is probability of A union B. Probability of A union B. So here we can use the formula of एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये आपको जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बताया गया था कि ये कौन सी थ्योरम होती है, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, 0.8 प्लस 0.5 माइनस probability of A intersection B that is 0.32. तो ये it implies कितना आ जाएगा, ये 80 plus 50 that is 0. कितना, सॉरी 1.13, 83 आ जाएगा 13, 1.30. ओके, और इसमें से हम माइनस करेंगे 0.32. सो योर आंसर इज 0.98.
So this is your required probability. Okay, now come to this. Evaluate probability of A union B if twice of probability of A is equal to probability of B is equal to 5 upon 13, and this is given to you. So whatever is given, that first we will write, because to find probability of A union B, क्या फॉर्मूला होता है? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब from where we will get this? Let us see. देखते हैं. Probability of A की वैल्यू कितनी है? Twice of probability of A है 5 upon 13. तो probability of A आ जाएगा 5 upon 26. 2 को डिवाइड कर देंगे. Probability of B कितना आ जाएगा? 5 upon 13. Then probability of A upon B जो होता है probability of A intersection B upon probability of कितना आ जाएगा? B. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, you will get the value of probability of A intersection B. So now write down the values. A की 5 upon 26 plus 5 upon 13 minus probability of B into probability of A upon B. Probability of B है 5 upon 13 into A upon B है 2 upon 5. Clear? LCM is 26. Then 5 plus 10 minus 4. ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 11 upon 26. So like this we can find out the conditional probability of any of the event when the other event is already occurred. Pause the video to note down. Come to problem 5th. If probability of A equal to 6 upon 11, probability of B equal to 5 upon 11, probability of A union B equal to 7 upon 11, then find this. Let us see solution of first. We know the formula of probability of A union B. This is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Just put the value. Probability of A union B है 7 upon 11, probability of A है 6 upon 11, probability of B है 5 upon 11, and this we have to find out. A intersection B. So probability of A intersection B, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 upon 11 plus 5 upon 11 minus 7 upon 11. 11 is LCM. 6 plus 5 11. 11 minus 7, that is 4. So this is your answer of probability of A intersection B. Now second part, probability of A upon B. Okay, so how to find out this probability of A when B is already occurred? So इसका फॉर्मूला होता है probability of A intersection B upon probability of B, and the value of A intersection B is 4 upon 11. The value of probability of B is, क्या value है probability of B की? 5 upon 11. So your answer is 4 upon 5. Now come to third. Probability of B upon A, reverse order. यानी हमें probability निकालनी है इस B event की when A is already occurred. So ये हो गया probability of B intersection A upon probability of A. And देखते हैं probability of B intersection A या A intersection B, that is 4 upon 11. Probability of A is 6 upon 11. ये cancel out, 4 upon 6 यानी कि 2 upon 3. So like this you can find out the solution of these kind of question. Okay, now come to problem 6. Problem 6 is having 3 parts. I only written 2. Third you have to do by your own. Same question is there. A coin is tossed 3 times where? So first of all we have to make sample space. कि एक coin है जिसको 3 बार टॉस किया गया है. So solution.
सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। और कॉइन के केस में सैंपल स्पेस देखो ऐसे निकलता है, एक बार टॉस किया हेड टेल ट्री, दूसरी बार टॉस किया अगेन ट्री बना लो हेड टेल हेड टेल, तीसरी बार टॉस किया अगेन, सो ये ट्री की फॉर्म में आ जाता है हेड टेल हेड टेल हेड टेल। क्लियर? नाउ राइट डाउन सैंपल स्पेस, हेड हेड हेड, यानी कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करो, सेम सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट यू विल गेट। तो हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड हेड कॉमा टेल हेड टेल, then tail tail head and tail tail tail। तो like this it's become easy। जो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, ट्री 4 होता तो फिर से एक और बन जाता। सो इट इज कॉल्ड, तो ये इसको हम ट्री मेथड कहते हैं, जो हम ऐसे लिखते हैं इसको। सो ये कॉइन के केस में इट इज वेरी हेल्पफुल टू मेक सैंपल स्पेस। अच्छा, दूसरा, हमें ये पहले से ही पता लग जाता है कि इस केस में कि कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे अगर कॉइन को टॉस किया है तो। सो अगर 2 बार कॉइन को टॉस किया है या 3 बार किया है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ टॉसेस। जैसे 3 बार टॉस किया है तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 सैंपल पॉइंट बनने हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन, हेड ऑन द थर्ड टॉस। अब तीसरे टॉस में जितने भी हेड हैं, जहां जहां तीसरे टॉस में हेड आया है वो सारे इस इवेंट के सैंपल पॉइंट बन जाएंगे। जैसे सबसे पहले एच एच एच, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, देन टी टी एच, देन एफ। एफ है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉसेस पे हेड आना चाहिए, तो एक तो ये हो गया, बाकी कुछ भी हो पहले 2 टॉसेस पे हेड आना चाहिए। ओके, देन हेड हेड टेल, देन और कोई भी नहीं है, यानी कि इसमें 2 ही बनेंगे। ठीक, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F upon probability of F। Now इसकी इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। E इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा, ये भी है, और एच एच ये है क्या, एच एच टी। एच एच टी हमें था हेड ऑन द फर्स्ट थर्ड टॉस, तो एच एच टी नहीं है, सो इसमें आ गया सिर्फ एच एच एच। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की, और प्रोबेबिलिटी कहां से निकलेगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, भाई यहां से। ई इंटरसेक्शन एफ है 1, जिसमें एक सैंपल पॉइंट है, टोटल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2, ये टोटल 8, 2/8। 8 से 8 कैंसिल एंड आंसर इज 1/2। क्लियर? कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 2 हेड। ई में एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और एट मोस्ट का होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम कितने भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, 3 वाले भी आ जाएंगे, 4 वाले भी आ जाएंगे। तो कम से कम जिनमें 2 हेड हैं वो सारे इसमें लिखे जाएंगे। तो पहला तो ये एच एच एच, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एच एच टी, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एच टी एच, कम से कम 2 होने चाहिए, ये नहीं हो सकता, और कोई भी नहीं होगा।
सो ई आ गया हमारे पास, ये 4 सैंपल पॉइंट आ गए इसके। एफ एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम कितने भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसमें वो सारे सैंपल पॉइंट या एलिमेंट्स आएंगे जिनमें मैक्सिमम 2 हेड है, 1 हेड है या 1 भी नहीं है। सो मैक्सिमम 2 हेड, एच एच टी, एच टी एच, ये भी आ जाएगा एच टी टी, टी एच एच, उसके बाद टी एच टी, उसके बाद टी टी एच एंड देन टी टी टी। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, और मैक्सिमम का ये हो गया इसका मतलब कि 1 हेड वाला भी इसमें आ जाएगा, 0 हेड वाला भी इसमें आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है टेल वाली टर्म भी इसमें आ जाएगी। और एटलीस्ट का मतलब ये था कि कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए, ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। क्यों? ई अपॉन एफ निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट ई इंटरसेक्शन एफ। तो वो क्या आएगा, देखते हैं। कॉमन एक ये कॉमन है, एच एच टी, देन एच टी एच, देन टी एच एच भी कॉमन होगा इसमें, टी एच एच, और कोई कॉमन नहीं है। अब हम निकालते हैं क्या, नाउ फाइंड आउट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ और एफ की प्रोबेबिलिटी। तो ई इंटरसेक्शन एफ 1 2 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, सो 3 अपॉन 8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन 8। So your answer is 3/7. So like this we have to find out the solution. Third part of this question that you have to do by your own. वो भी ऐसे ही होगा, सेम सैंपल स्पेस होगा, आपको इवेंट्स बनाने हैं and find out E intersection F. Pause the video to note down. Now come to problem 7. 2 coins are tossed once. 2 कॉइन को टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा इट्स सिंपल ओनली। आप ट्री की हेल्प से भी ले सकते हैं। 2 कॉइन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ओके, नाउ टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, ई। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, किसी एक कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। सो हेड टेल और टेल हेड। एफ क्या आएगा, 1 कॉइन शोज हेड। एक कॉइन क्या है, क्या बता रहा है, हेड बता रहा है। देखो तो हेड टेल, टेल हेड, सेम आ गया। देखो इसमें भी एक कॉइन हेड दिखा रहा है, यहां पे भी एक कॉइन हेड दिखा रहा है। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में टेल आना चाहिए, तो एक कॉइन में टेल आ रहा है। 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड दिखा रहा है। क्लियर हो गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इन दोनों की इंटरसेक्शन, तो दोनों की इंटरसेक्शन में ये दोनों एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, सेम 2 डिवाइड बाय 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2 डिवाइड बाय 4, यानी ये क्या हो गया 1। दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये क्या बन जाता है, श्योर इवेंट बन जाता है। अब कम टू सेकंड पार्ट, नो टेल अपीयर्स। कहीं भी कोई भी टेल, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। नाउ हियर आई एम डूइंग सेकंड पार्ट। ई, कोई भी टेल अपीयर नहीं हो रहा है, नो टेल अपीयर्स।
सो इसका मतलब सिर्फ क्या आएगा, हेड हेड। एफ, नो हेड अपीयर, इसका मतलब कोई भी हेड नहीं आएगा, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो टेल टेल। इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी इसमें 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0। सो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। सो एक क्वेश्चन में हमने एक फर्स्ट पार्ट देखा श्योर इवेंट का, और दूसरा पार्ट देखा हमने किसका, इम्पॉसिबल इवेंट का। जब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आ जाती है, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और दैट इज इक्वल टू 0, देन इट इज व्हाट, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। Pause the video and note down. Okay, now problem 8, very important. A die is thrown 3 times. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन को टॉस करते ही हमें पता लग जाता है कि उसके कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर नंबर ऑफ टॉसेस। वैसे ही हमें डाइस में पता लग जाता है, डाइस यानी कि जिसमें 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, जिनके ऊपर ये नंबरिंग लिखी होती है। लूडो में इस्तेमाल करते हैं, सांप सीढ़ी में इस्तेमाल करते हैं। सो ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम, एक डाई को हमने 3 बार टॉस किया, फेंका। एक डाइस को टॉस करने पे जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 6 होती है, तो 3 को करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 into 6 into 6, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 216। सो ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, सो लेट n be the number of sample points. So number of sample point is equal to 216, या number of possible outcome, let n be the number of possible outcome कह देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, possible outcomes। तो 216 आ गई, 3 बार टॉस करने में। 2 बार होता तो 6 into 6 36 होते, तो 36 तक तो बनाया जा सकता है पेयर 2 डाइस का, बट 216 बहुत बड़ा है, एंड नो नीड टू मेक ऑल्सो सैंपल स्पेस। अब ई इवेंट है, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। भाई थर्ड टॉस में क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, जिसमें मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं 2 डाइस को टॉस करने का। 2 डाइस को टॉस करने का मतलब है कितने पेयर बनेंगे, 36 पेयर बनेंगे। देखो सैंपल स्पेस क्या होगा उसका, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 6 2 5 3 6 3 5 4 6 4 5 5 6 5 5 6 6 6। सो दो डाइस को टॉस करने पर जो पेयर बनता है वो ये पेयर बनते हैं। जैसे हमने 2 डाइस को टॉस किया, हो सकता है 1 1 आए दोनों पे, हो सकता है 1 2 आए, तो हमने सारी पॉसिबिलिटी लिखी है 36। अब उसने कहा है 3 बार करना है।
इसका मतलब ये जो 36 पेयर्स आए, इसको हम किसके साथ पेयर बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 थर्ड डाइस के साथ। यानी ये 36 पेयर 1 के साथ पेयर बनाएंगे, यानी 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 ऐसे। फिर 2 के साथ बनाएंगे, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, तब जाके ये कितने पेयर बनेंगे? 216 पेयर बनेंगे। तो इवेंट हमें कहता है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। तो अगर तीसरे टॉस पर 4 आना चाहिए, तो पहले ये 1 के साथ बना तो 36 हुए, 2 के साथ बना तो 36 बने, 3 के साथ 36, तो 4 जब थर्ड पोजीशन पे 4 आएगा तब भी कितने पेयर बनेंगे? ये 36 पेयर बनेंगे। सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इज 36। क्लियर हो गया है? प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 36 अपॉन 216। तो 36 1/6 आ जाएगा। नाउ सेकेंड, 6 and 5 appear on the first 2 tosses. By 6 and 5 ये पहले 2 टॉसेस पे आना चाहिए, तीसरे पे कुछ भी आ सकता है। अब ध्यान से देखो, पेयर तो 3 का बनेगा, 2 का नहीं, क्योंकि 3 बार टॉस किया है। ये तो मैंने 2 का बनाया है, क्योंकि 216 पेयर नहीं बनाए जा सकते। तो इसके साथ 1 का पेयर बनेगा, तो ये 3 का पेयर बन जाएंगे। फिर 2 बनाएगा, तो ऐसे ही जो एफ इवेंट में नंबर आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो क्या आएंगे? 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। इसके अलावा कोई और 3 पेयर का यहां पे एलिमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 216 में से ऐसे 6 पेयर होंगे जिनके फर्स्ट 2 एलिमेंट 6 और 5 होंगे। ठीक है, तो 6 and 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया? कितना आ गया? 6 upon 216, दैट इज 1 upon 36। अब इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है, E इंटरसेक्शन F। क्यों? क्योंकि हमें E अपॉन F निकालना है, तो E इंटरसेक्शन F चाहिए। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, ध्यान से देखना। इस E में कौन से एलिमेंट थे? इस E में वो एलिमेंट थे जिसका लास्ट नंबर क्या बन रहा था? 4। सारे थे। ये 36 के 36 में यहां लास्ट नंबर 4 लगा लो। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन करूंगा तो इसमें भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका लास्ट नंबर 4 है, यानी वो पेयर क्या आ जाएगा? 6 5 4। और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E इंटरसेक्शन F की 1 upon 216। So now we have to find probability of E upon F. Probability of E intersection F upon probability of F, that is equal to 1 upon 216 upon 1 upon 36. So your answer is 1/6. So like this you can find out the solution when dice is thrown. ठीक है, डाइस कितने भी डाइस थ्रो कर लो, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम ऐसे बनाए जाते हैं, और कितने भी कॉइन्स को टॉस कर लो उसके पॉसिबल आउटकम 2 की पावर नंबर ऑफ टॉसेस से बनाए जाते हैं। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। कम टू 9th क्वेश्चन। मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तीनों एक लाइन में खड़े हुए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? लेट अस राइट फर्स्ट। सैंपल स्पेस बनाते हैं। सबसे पहले हम मदर, M, F और S। सेकेंड, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? मदर, फिर बीच में मदर, सन, फादर,
यानी फर्स्ट पोजीशन पे हमने मदर को रखा दोनों टाइम। अब हम फादर को फर्स्ट पोजीशन रखते हैं, फादर सन मदर, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, फादर मदर सन। अब हम फर्स्ट पोजीशन पे सन को रखते हैं, सन फादर मदर, सन मदर फादर। सो दीज आर 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब ई इवेंट हमें कहता है सन ऑन वन एंड। भाई सन जो है वो किसी एक एंड पे हो, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर वेयर सन इज एंड आइदर किसी भी एंड पे है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी नंबर ऑफ इवेंट एलिमेंट इन इवेंट ई इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/6 दैट इज 2/3। फिर एफ फादर इन मिडल। अब देखो फादर कितनी पोजीशन ऐसी है जिसमें फादर मिडल पोजीशन पे है? 1 and 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ इज 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3। क्लियर? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका ई अपॉन एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। सो ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें सन आइदर साइड था, 1 2 3 एंड 4। इनमें से किसमें फादर मिडिल में आ रहा है? 1 2 में फादर क्या आ रहा है? मिडिल पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन टोटल कितना है? 6 दैट इज 1/3। नाउ फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/3। यही आया भाई। एफ फादर इन मिडिल पोजीशन पे, एक ये था एक ये था, सन आइदर पोजीशन पे, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मिली वो क्या मिली? दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो इट इज व्हाट? इट इज ए काइंड ऑफ श्योर इवेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। एक ब्लैक और एक रेड डाई को हमने रोल किया है, फेंका है, तो यानी 2 डाइस को फेंका है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी बनेगी? 36। सो नंबर ऑफ लेट n बी द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 36। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन द अदर इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन ए 5। जो गिवन दैट है ब्लैक डाई रिजल्टेंट इज ए 5, उसका मतलब यह है कि वो इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि जो हमने डाइस उछाले हैं उसका सम क्या है? ग्रेटर देन कितना है? 9 आए, ग्रेटर देन 9। सो आप क्या कर सकते हैं? 36 वाला सैंपल स्पेस बना सकते हैं। मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा मैं, बट यू ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास। नाउ इस 12th क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया। सो अब ध्यान से देखें, जो इवेंट ई है, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट getting sum greater than 9। अब ऐसे कितने पेयर होंगे जिनका सम ग्रेटर देन 9 होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं
कि फर्स्ट लाइन में जो पेयर होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इनको सम करोगे तो 9 से बड़ा नहीं हो सकता। देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इनको भी सम करोगे 9 से बड़ा नहीं हो सकता। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इनको भी सम करोगे 9 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, बट 4 6 पहला नंबर क्या होगा? 4 6। दूसरा नंबर क्या होगा? 5 5। तीसरा नंबर क्या होगा? 5 6। चौथा नंबर क्या होगा? 6 4 6 5 6 6। ये सारे पेयर ऐसे हैं जिनका सम ग्रेटर देन 9 है जब हम दो डाइस को उछालते हैं। एफ इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है उसका कहने का था उसमें कि द ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन 5। मान लो पहला डाइस जो उछाला वो ब्लैक है, दूसरा रेड है, तो ब्लैक डाई रिजल्टेंट 5 का मतलब है जिसमें 5 आए ब्लैक डाई को उछालने पे। ठीक है, तो 5 1 ये ब्लैक डाई का है और ये रेड डाई का। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ध्यान से सुनना, हमने दो डाइस को उछाला, उसमें से एक रेड था और एक ब्लैक। पहले वाला ब्लैक था, दूसरा रेड था, यानी पहली आउटपुट जो आएगी वो ब्लैक डाई की होगी, दूसरी आउटपुट जो आएगी वो रेड डाई की होगी। तो उसने कहा कि भाई जो एफ इवेंट है वो ये है कि जो ब्लैक डाई है उस पर 5 आना चाहिए। रिजल्टेंट टू 5 का मतलब होता है कि इट विल कम 5, तो 5 आना चाहिए। सो ये ई इवेंट आया और ये एफ। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या है वो देखते हैं। इसकी इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, देखो ध्यान से। 5 5, देन 5 6, और कोई आ रहा है 5 5 5 6, और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। नाउ ध्यान से सुने, वी हैव टू फाइंड व्हाट, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई क्या? ई बी द इवेंट ग्रेटर गेटिंग सम ग्रेटर देन 9 अपॉन एफ। एफ वो होता है जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका था, तो एफ की जो रिजल्टेंट है ब्लैक डाई का वो 5 आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो सिंपल। ये कितना आ गया? 2 अपॉन टोटल कितना है? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है? 36। सो 1/3 इज द आंसर। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट उसने कहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेंट इन ए नंबर लेस देन 4। अब आपको क्या करना है, जो ई इवेंट लेना है उसमें जो एग्जैक्टली वही एलिमेंट पेयर बनेंगे जिनका सम कितना होगा? 8, और ये ऑलरेडी अक्कड़ होगा एफ। उसमें ये कहा है कि जो रिजल्टेंट किसका? रेड डाई का। रेड मतलब सेकंड वाले का, रेड डाई का। यहां पे जो रिजल्टेंट आए, जो नंबर आए वो लेस देन क्या हो? 4 हो। देन आप उनके पेयर बनाए एंड फाइंड आउट द solution. So in this lecture I covered up to question number 10. So solve it, learn it, just watch carefully. These are very simple question, and then we will move forward in our next video. Till that, Jai Hind.